Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture we will discuss the binomial series. Before to discuss the binomial series, in previous video lectures we discussed principle of mathematical induction and binomial theorem. तो इन दो टॉपिक्स को मैं यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम बाइनामिल सीरीज़ की तरफ आएंगे जो इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, वी डिस्कस इन डिटेल दैट principle of mathematical induction is used to prove different types of formulas, conjectures or propositions. For example, if you see to this formula 1 plus 2 plus 3 up to n, that is equal to n into n plus 1 divided by 2, you know this is the arithmetic series, and sum of the first n terms of the arithmetic series from chapter number 5, you know that is equal to n into n plus 1 divided by 2. Now how you can verify this left hand side is true for all values of natural numbers? How you can verify that it is true for every natural number? So it is so difficult because natural numbers are infinite. तो in 1 तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर n को 2 पुट करोगे तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, लेकिन ये आप n की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये वेरीफाई करना इट इज़ impossible because number of the natural numbers are infinite. So that's why we use the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction says that if a result is true for n equal to 1 and the result is true for n equal to k plus 1 whenever you suppose result is true for n equal to k, then principle of mathematical induction guarantees that the result will be true for all n, where n belongs to natural numbers in this case. So that is the principle of mathematical induction, and the principle of mathematical induction is actually this idea gets from the example that I gave, that if we have a set of rectangular tiles and you are interested that at which sufficient condition all these tiles will fall down. So for that, the first tile will fall if you push the tiles in some direction. So if the first tile falls and every tile falls if the successor falls, मीन अगर आपका कोई 10वां टाइल्स गिरता है तो उसके बाद वाला टाइल्स गिरना चाहिए. सो फ्रॉम दैट एरिया वी गेट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1 and n equal to k plus 1, whenever you suppose that the result is true for n equal to k, then the principle of mathematical induction guarantees that the result is true for all values of पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर. तो ये वो 3 स्टेप्स हैं. n equal to 1 के लिए तुम चेक करते हो कि रिजल्ट ट्रू है कि नहीं है. फिर n equal to k आप सपोज करते हो कि रिजल्ट आपके पास ट्रू होना चाहिए, ये सपोज आप करते हो, और फिर ये सपोजिशन आप यहाँ यूज़ करते हो व्हेन यू आर प्रूविंग दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n equal to k plus 1. n equal to k plus 1 और n equal to 1 के लिए आपने साबित करना होता है, लेकिन n equal to k plus 1 के लिए जब हम साबित करते हैं जो भी रिजल्ट हो तो वहाँ पे ये सपोजिशन हम यूज़ करते हैं, और ये हम स्टेप 2 में मान लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा फॉर n equal to k. So that is all about the principle of mathematical induction, which is the first topic of chapter number 7. After that we discuss binomial theorem. आप सबको पता है कि दो टर्म्स की सम को हम कहते हैं बाइनामिल. सो a plus b is बाइनामिल. कोई भी दो टर्म्स आप ले लें तो अलजबरा में दो टर्म्स के सम को हम कहते हैं बाइनामिल. अब लेट्स से ये a b आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, ए भी आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हैं. यहाँ पे इस बाइनामियल का अगर मैं क्या ले लूँ, पावर ले लूँ. नाउ दिस पावर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स. ये पावर आपका है पॉजिटिव इंटीजर, देयर इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. नाउ
अगर आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल हो, लेट्स से ये आपके पास 2 है, तो यू नो दैट a plus b power 2 is equal to a plus b multiplied by a plus b, because we know a definition that a power n is the product of n factors, that is the product of n factors, and each factor will be a, so that a power n is n times multiplication of a, so that's why we can write a plus b whole power is a plus b multiplied by a plus b, so that is equal to a square plus 2ab plus b square. तो ये भी आपके पास एक बाइनामियल की एक्सपेंशन है. यहाँ पे n आपका 2 है, अगर आप ये ले लें a प्लस बी होल क्यूब, तो ये जो आपके पास बाइनामियल का क्यूब है इसकी एक्सपेंशन अगर आप कर लें तो a प्लस बी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, बिकॉज द पावर इज 3. Using this concept, a power n is the product of n factors, so that's why a plus b whole power 3 is equal to a plus b multiplied by a plus b multiplied by a plus b, so that is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square and b cube. So you clearly see that is the expansion of this binomial. This is the expansion of this binomial. यहाँ पे अगर n आपके पास 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में 3, अगर यहाँ n 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में आपके पास 4 मिल रहे हैं. लेकिन जब आपका ये n बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से 100, तो ये a प्लस बी को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इट्स सो डिफ़िकल्ट. सो इसी वजह से बाइनामियल थ्योरम डेवलप्ड हो गया है. और बाइनामियल थ्योरम में क्या है, बाइनामियल थ्योरम में हम यहाँ पे n लेते हैं. नाउ दिस n may be any positive integer. According to the binomial theorem, that is equal to n0 combination a power n b power 0. You clearly see that if there is square, so the first term will be a square and the last term will be b square. So if there is n, so the first term is a power n, because n0 combination is 1 and b power 1 is also, b power 0 is also 1. After that, the power of the b will be increased by 1 and the power of the a will be decreased by 1 progressively. You clearly see it. So and this is so on. This is nr a power n minus r br and so on. That is nn a power 0 b power n. So that is all about the binomial theorem. This is the combination, and you know combination nr factorial, nr combination is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, and this term is the general term, and that is orth plus 1 term. So that is the general term of the binomial theorem. So ये हमने पिछले लेक्चर्स में सब कुछ डिस्कस किया हुआ था. इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए हुए थे कि अगर यहाँ पे n है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में n प्लस 1 होंगे. n अगर आपका इवन है तो उस केस में वो एक मिडिल टर्म होगा, ये आप देख सकते हैं. और इन जनरल आपके पास वो n प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म होगा, जनरल टर्म यहाँ से. और अगर n आपके पास आड है तो 2 मिडिल टर्म होंगे, वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म और n प्लस 3 डिवाइड बाई 2th टर्म होगा. इनके अलावा जनरल टर्म आपके पास बाइनामियल थ्योरम का यही होगा. तो ये सारा सब कुछ हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ यहाँ पे हमने पढ़ना है बाइनामियल सीरीज़ को. तो द टॉपिक इज़ बाइनामियल सीरीज़. अगर हम a प्लस बी पावर n, यहाँ पे a आपका a भी आपके पास रियल नंबर है, n आपके पास क्या है, दैट इज़ दी पॉजिटिव इंटीजर्स. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू z प्लस. तो यहाँ ये आपके पास जो है a प्लस बी पावर n, दैट इज़ इक्वल टू, यू कैन आल्सो राइट दैट इज़ a power n plus n into n minus 1 divided by 2 pictorial, because this is n2 combination, here is n1 combination, here is n0 combination, that is 1, we know from the combination and factorial notations. That is a power n minus 1 b power 1, the next will be n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial a power n minus 2 b power 2 plus and so on.
here will be n into n minus 1, n minus 2 and so on up to n minus r plus 1 divided by r factorial a power n minus r, b power r and so on up to that will be b power n. So that is the general term in this case. That is this n into n minus 1, n minus 2 up to and so on n minus r plus 1 divided by r factorial is actually nr combination. सो दैट इज़ द बाइनामियल एक्सपेंशन. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कम्बिनेशन की जगह पे मैंने कम्बिनेशन का जो रिजल्ट है कि एन आर कम्बिनेशन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वो यूज़ किया हुआ है. अब अगर इस एक्सपेंशन के अंदर ए को आप 1 कंसिडर कर लें, बी को आप x कंसिडर कर लें, बी को आप x कंसिडर कर लें और n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस केस में ये एक्सपेंशन a प्लस एक्स होल पावर n हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे 1, b की जगह पे x, n आपके पास अपनी जगह पे. सो ये होगा 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वेयर. Okay, because you know from the properties that the power of a decreases progressively in every terms by 1 and the power of the b will increases progressively 1 in every terms. So you clearly see that in this case a is 1 and b is x, so you see that x is power 1 x square and then x cube and so on. So this is n into n minus 1 divided by n minus 2 divided by 3 factorial x cube and that will be so on up to n into n minus 1 n minus 2, that is n minus r plus 1 divided by r factorial x power r and so on up to x power n. So that will be the general term, that will be the general term of the this binomial expansion. सो ये तो सारा सब कुछ हम वहाँ से पढ़ चुके हैं, ये डिटेल तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हैं. अब यहाँ बाइनामियल सीरीज़, यहाँ पे अगर आपके पास इस केस में देख ले कि द पावर इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये n जो है ये नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर और ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन मीन n की वैल्यू आपके पास है -1 या n की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो इस केस में आपका जो बाइनामियल एक्सपेंशन होगा या बाइनामियल थ्योरम जो होगा वो क्या होगा. तो ये याद रख ले कि जब भी बाइनामियल में पावर नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो तो उस केस में वो जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेट नहीं होगी, वो एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगी, वो एक्सपेंशन हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स को कंटेन करेगी. दैट एक्सपेंशन विल ऑलवेज कंटेन इन्फिनिट टर्म्स. सो यू सी फ्रॉम हेयर, यहाँ आप देख लें, यहाँ थोड़ा सा आप देख लें कि you see expansion of 1 plus x power n where n is the exponent is negative integer. ये जो आपका है ये n जो है या नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, if that is a negative or a fraction. तो इस केस में आपके पास जो होगा इस केस में if n is negative integer or a fraction form, तो then द एक्सपेंशन इनटू ये जो आपका एक्सपेंशन है ये वाला एक्सपेंशन ये फिर हमारे पास टर्मिनेट नहीं होगा, नेवर एंड्स. ये आपके पास प्लस डॉट 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 मैंने लगाया हुआ है, ये आगे जाएगा. सो दैट बिकम अ सीरीज़, इसको हम बाइनामियल सीरीज़ कहते हैं. ये बाइनामियल सीरीज़ में इन्फिनिट टर्म्स होते हैं. ये याद रख ले कि जो हमारे पास बाइनामियल एक्सपेंशन है दिस इज़ अ बाइनामियल एक्सपेंशन यूजिंग बाइनामियल थ्योरम. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n+1 है, क्योंकि यहाँ n तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n+1 होंगे जब ये n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है. लेकिन जब ये n नेगेटिव इंटीजर बन जाता है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास
इन्फिनिट हो जाएंगे। ये यू सी दैट 2 नेवर टर्मिनेट्स व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, सो दैट इज कॉल्ड द बाइनॉमियल सीरीज। इसको हम कहते हैं बाइनॉमियल सीरीज। इसमें टर्म्स आपके पास इन्फिनिट हैं, सो दैट इज द बाइनॉमियल सीरीज। ये आपके पास है बाइनॉमियल सीरीज। अब ये बाइनॉमियल सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा और ये डाइवर्जेंट कब होगा? क्योंकि आपका सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि वो उसका सम, इन्फिनिट टर्म्स का सम किसी खास नंबर के बराबर हो, तो सच सीरीज आर कॉल्ड कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख लें जो हमने ज्योमेट्रिक के केस में डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक सीरीज आप सबको पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास जो कॉमन रेशो है, इफ दैट कॉमन रेशो इज लाइज बिटवीन 1 and -1, this r absolute less than 1 means -1 is less than r is less than 1, or you can write it that r belongs to open interval -1 and 1. We discussed that in the geometric series. If the number of terms are infinite in a geometric series, you see that a plus ar square, ar cube, and so on up to arn minus 1 and so on, and that is a geometric series Sn. Now in this case this is S infinity, the number of the terms are infinite, and r absolute is less than or less than 1, mean r lies between -1 and 1. So in that case this S infinity is equal to a divided by 1 minus r. So you clearly see that these are infinite terms, but the sum of the infinite terms is a defined value. आपके पास इन्फिनिट टर्म्स का सम एक डिफाइंड वैल्यू है, तो इस किस्म की इन्फिनिट सीरीज को फिर हम कहते हैं कन्वर्जेंट। ये हमारे पास होती है कन्वर्जेंट, ये कहलाता है कन्वर्जेंट सीरीज। तो आपने डिस्कस किया था कि जब r लाइज बिटवीन -1 and 1 ओपन इंटरवल तो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है, और जब r आपके पास ग्रेटर देन 1 या r आपके पास लेस देन -1 हो, तो इस केस में आपका जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, वो आपके पास डाइवर्जेंट था। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, मीन एक अनडिफाइंड वैल्यू की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर 1 + 2 + 3 and so on, so this is the arithmetic series. Now this arithmetic series अगर आप infinite terms का sum find करते हैं, so that is divergent, क्योंकि यहाँ जब आपके पास इसका nth term n होगा, तो जब n infinity की तरफ जाएगा तो ये जो Sn है that will also goes to infinity. So that's why we say that this series is divergent. ये सीरीज आपके पास क्या है? ये आपके पास है डाइवर्जेंट। तो अब यहाँ हमने डिस्कस करना है बाइनॉमियल सीरीज को। बाइनॉमियल सीरीज में आपके पास n जो होगा वो असल में ये देखिए दैट इज द बाइनॉमियल सीरीज a1 + x पावर n, लेकिन ये n आपके पास या नेगेटिव होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, या आपके पास ये n फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन मीन कोशेंट फॉर्म में, ये आपके पास कोशेंट फॉर्म में होगा। तो इस केस में आपका जो बाइनॉमियल सीरीज में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x, a b को आप यहाँ पे 1 और x ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी n आपके पास जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, अगर ये नेगेटिव हो या ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो या कोशेंट फॉर्म में हो, तो उस केस में आपके पास बाइनॉमियल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ n है। तो प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे। आफ्टर n+1th टर्म इट विल टर्मिनेट, ये रुक जाएगा। लेकिन अगर n आपका नेगेटिव है या फ्रैक्शन या कोशेंट फॉर्म में है, तो उस केस में बाइनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ द टर्म्स इन्फिनिट होंगे, मीन इट विल नेवर टर्मिनेट, सो दैट इज कॉल्ड बाइनॉमियल सीरीज। तो ये आपके पास बाइनॉमियल सीरीज इसी तरह होगा। ओके, सो n into n - 1 divided by 2 factorial x square, n into n - 1 divided by 3 factorial x cube and so on। अब ये बाइनॉमियल सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा? आपके पास अगर x की वैल्यूज लाइज करें बिटवीन 1 and -1,
ये जो आपका x है यहाँ पे, अगर ये 1 और -1 के बीच में हो, ओपन इंटरवल 1 और -1 के बीच में हो, तो इस केस में आपका जो बाइनामियल सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। दैट इज द बाइनामियल सीरीज। ये आपका है बाइनामियल सीरीज। तो ये बाइनामियल सीरीज उस केस में कन्वर्जेंट होगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इसका क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीज़न इसका ये है कि आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में x का पावर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है एंड सो ऑन। तो यू सी दैट द पावर ऑफ द x आर इंक्रीजिंग। अब आपके पास ये याद रख ले कि जब x -1 और 1 के बीच में होगा और इसका पावर r है, एंड लेट से r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड r इज अ नेचुरल नंबर, तो जब x लाई करेगा -1 और 1 ओपन इंटरवल में, तो x पावर r, जब r आपके पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, r को आप इंक्रीज करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब 4, 5 एंड 6, तो फिर उस केस में x पावर r जो है ये 0 की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा? ये हमारे पास, यू क्लियरली सी दैट 0.4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर होता है 0.16 के। तो यू सी दैट 0.4 इज ग्रेटर देन 0.16। तो यहाँ पे दिस नंबर इज बिटवीन -1 एंड 1, तो इसको आप क्यूब लोगे तो ये इससे भी कम हो जाएगा। इसका अब पावर इंक्रीज करोगे तो ये 0 की तरफ। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट r गोज टू इन्फिनिटी। इफ r गोज टू इन्फिनिटी, तो फिर उस केस में x एब्सोल्यूट r, x एब्सोल्यूट यहाँ से ये क्लियर है कि r लाइज बिटवीन 1 एंड -1, तो ये जाएगा 0 की तरफ। तो यहाँ आप देख लें, अगर ये x 1 और -1 के बीच में कोई नंबर है, तो जब भी आप पावर को इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे उस टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। तो आप ऐसे चलते जाओगे तो देखें, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है x का पावर 2, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, तो ये वैल्यू न्यूमेरिकली डिक्रीज होगी। फिर यहाँ पे x का पावर 4 होगा, तो वो टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो टर्म बाय टर्म आपके पास डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका ये जो बाइनामियल सीरीज है दैट इज ओनली कन्वर्जेंट फॉर x when x lies between the open interval -1 and 1। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये रियल लाइन है आपके पास, दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज +इन्फिनिटी, ये आपका है -1, ये आपका है 1, तो -1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये याद रख ले कि इंटरवल्स आर ऑलवेज इन्फिनिट, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या x की वैल्यू लेस देन -1 हो, तो इस केस में आपका जो बाइनामियल सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कन्वर्जेंट कब होगा और ये डाइवर्जेंट हमारे पास कब होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द सीरीज इन 3 मीन द बाइनामियल सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली if x lies between -1 and 1 open interval. The series in 3 mean the binomial series is divergent if x is less than -1 or x is greater than 1, तो इस केस में ये divergent होगा। Now तो वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट दी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हम जब भी बाइनामियल सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे x हमारे पास -1 और 1 के बीच में होगा, और यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि बाइनामियल सीरीज को फाइंड करने के लिए एज अप्रोक्सीमेशन वी जस्ट नीड फ्यू टर्म्स, क्योंकि जब भी x का पावर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे न्यूमेरिकली वो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब भी आप बाइनामियल सीरीज में ये राइट हैंड साइड लिखते हैं तो इसमें से फ्यू टर्म्स आप लिखोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नियर टू एग्जैक्ट, बिकॉज यू नो इफ x इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो उस केस में आपके पास x का पावर जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो आपको ज़्यादा टर्म्स लिखने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। ये बात तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की कि दैट इज़ द nth टर्म, दैट इज़ द जर्नल टर्म विच इज़ द r+1 टर्म। ये हमारे पास जर्नल टर्म होगा बाइनामियल सीरीज में, यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस बाइनामियल थ्योरम एज वेल। यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, एग्जाम्पल 13 इंक्लूडेड इन द एक्सेलरेटेड कोर्स। यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स इन द बाइनामियल एक्सपेंशन, तो यहाँ यू क्लियरली जस्ट रिप्लेस n बाई -1/2, -1/2 से इसको रिप्लेस कर ले
सो यू डू द कैलकुलेशन और यहाँ पे अपने 4 टर्म्स रखने हैं एंड यू नो द टर्म्स आर डिफरेंशिएटेड बाय प्लस एंड माइनस. सो यहाँ पे मैंने 4 टर्म्स. जस्ट रिप्लेस द n by -1/2 in this binomial expansion and you know we are just interested in those binomial series which are convergent, mean the binomial series is only valid only if x lies between 1 and -1. X absolute less than 1 mean x lies between 1 and -1. दूसरा एग्जाम्पल नंबर 15 that is included in the accelerated course. यहाँ पे इस क्यूब रूट ऑफ 5/4 को आपने इनकी कैलकुलेशन करके आपने ये जो डिसिमल फॉर्म में आएगा अप टू 4 डिसिमल प्लेसेस ये करेक्ट होना चाहिए. तो अप टू देखिए अगर आपके पास 5 की वैल्यू है तो दैट इज 3.14 but that is not the correct value of the 5 because pi is an irrational. After the decimal it will never terminate or never repeat itself. डिजिट्स ये रिपीट भी नहीं करेगा. लेकिन अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स रखता हूँ सो दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द 5 अप टू 2 डिसिमल प्लेसेस. अगर डेसिमल के बाद तुम 3 करेक्ट डिजिट्स रखते हो सो दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड द करेक्ट वैल्यू अप टू 3 डिसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए करेक्ट अप टू 4 डिसिमल प्लेसेस. तो यहाँ इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है. यू क्लियरली सी दैट 1 + 1 डिवाइड बाई 4 1/3 क्योंकि इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1 + x पावर n. तो यहाँ n आपका 1/3 है. तो ये जो आपका बाइनामियल एक्सपेंशन होगी इस चीज़ की वो थ्रू बाइनामियल सीरीज आपने करनी है बिकॉज द पावर इज इन फ्रैक्शन फॉर्म दैट विल बी नेवर टर्मिनेट. तो उनमें से आपने टर्म्स 5 या 4 टर्म्स उनमें से रख ले. मैंने 5 टर्म यहाँ पे रखे हुए हैं. यहाँ इनकी वैल्यू 1/3 है, x की वैल्यू 1/4 है. जस्ट वो रिप्लेस कर लें. तो ये जो आपके पास 5 टर्म्स हैं टेकिंग ओनली 5 टर्म्स क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स की सम में हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें एक्यूरेट चाहिए अप टू 4 डिसिमल प्लेसेस. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली यू क्लियरली सी दैट इज after the decimal you have 4 digits 1 2 3 4 so that is the correct value of this up to 4 decimal places. तो अगर आपने ये इसके साथ नहीं लिखना है कि that is correct up to 4 decimal places तो इक्वलिटी की जगह पे यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेट लगाने हैं क्योंकि बाइनामियल सीरीज को अगर यहाँ देख ले सो हियर आर इन्फिनिट टर्म्स का सम लेकिन इन्फिनिट की बजाय आपने 5वें के बाद सारे के सारे नेग्लेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दिए. यहाँ पे 5वें टर्म पे इसको आपने टर्मिनेट कर दिया. तो ये आपने इक्वल की बजाय अप्रोक्सीमेट लिखना है. अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इक्वल आप लिखते हैं तो फिर साथ में ये लिखना होगा कि करेक्ट वैल्यू अप टू 4 डिसिमल प्लेसेस. ये आपने साथ में फिर लिखना है. So that is example number 15. Okay. After that we have example number 17 included in the accelerated course. तो इसमें से है if x be so small that its square and higher powers may be neglected. मीन आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जब x -1 और 1 में हो तो यहाँ पे आपके पास x का पावर है ये 0 की तरफ जाता है जब r को आप क्या करते हो इन्फिनिटी की तरफ और r आपके पास क्या हो गए ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. तो यहाँ पे x इन लोगों ने इतना स्मॉल लिया है कि आपके पास उनकी स्क्वायर और हायर पावर्स आपने नेग्लेक्ट करने हैं और इस स्क्वायर रूट 4 + x डिवाइड बाई 4 - x/3 को इवालुएट करना है. तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में मैंने लिख लिया. अब इनमें अगर आप देख ले 2 बाइनामियल इन्वॉल्व हैं ये और ये तो इसको पहले कंसिडर कर लें. तो ये आप देख लें लेकिन x का जो स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा उसको आपने नेग्लेक्ट करना है क्योंकि x बहुत ज़्यादा छोटा है और छोटी वैल्यू का पावर जब आप इंक्रीज करते हो मीन स्क्वायर क्यूब 4 तो वो नियर टू 0 आपके पास आता है अप्रोक्सीमेटली 0 आता है. सो ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि x is so small that its square and higher powers are approximately 0 therefore we can neglect x² x³ and so on. तो 1 + x डिवाइड बाई 4 1/2. तो x की जगह x/4 है और n की जगह 1/2 है. तो बाइनामियल सीरीज के अंदर जस्ट वो रिप्लेसमेंट कर लें लेकिन ये वाला टर्म आपने इग्नोर करना है. ये मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये नेक्स्ट टर्म में मैंने इग्नोर करना है क्योंकि x इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर और हायर पावर्स अप्रोक्सीमेटली 0 होते हैं तो वो हम नेग्लेक्ट करते हैं. तो ये आपके पास ये हो गया. और सिमिलरली 1 - x डिवाइड बाई 12 पावर -1 बाइनामियल सीरीज से ओपन करोगे तो
x की वैल्यू -x/12 और n की वैल्यू -1। तो ये बाइनॉमियल सीरीज ये आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है और यू नो x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर विल बी ऑलवेज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, इन दोनों को आप पुट कर ले इक्वेशन स्टार में। तो जब आप इक्वेशन स्टार में पुट कर ले तो यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन में भी ये एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको भी आपने नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि x इतना छोटा है कि उनकी हायर पावर्स अप्रोक्सीमेटली 0 होंगे, तो वो हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें तो ये इसकी आपके पास कैलकुलेशन ये आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे x आपके पास बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यू क्लियरली सी दैट इसको आपने इवेलुएट कर दिया। सो दैट इज़ दी एक्सरसाइज। ओके, ये बात आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दी कि दैट इज़ द इम्प्लीकेशन कि आपके पास जो बाइनॉमियल सीरीज़ हैं उनमें अगर आपके पास x लाइज बिटवीन 1 एंड -1, तो बाइनॉमियल सीरीज़ की अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ टर्म्स आपको चाहिए, क्योंकि आगे जब टर्म्स होंगे उनका पावर x का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जब वो इंक्रीज़ होगा तो उस टर्म की कैलकुलेशन आपके पास स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि x पावर r tends to 0 when r tends to infinity and r is a positive integer. So this fact shows that the term in each expansion go on decreasing numerically if x is this. ये बात आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दी। The some initial terms of the binomial series are enough for determining the approximate values of the binomial expansion having indices is negative integers or power mean। बाइनॉमियल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बाइनॉमियल सीरीज में जब n आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन हो तो कुछ टर्म्स काफ़ी है, क्योंकि आगे टर्म्स में x का पावर इंक्रीज होगा, और जब x का पावर इंक्रीज होता है और x आपके पास -1 और 1 के बीच में हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो बाइनॉमियल सीरीज में कुछ टर्म्स आपके पास एनफ होते हैं टू कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड सम। बाइनॉमियल सीरीज हम सम के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास कोई इन्फिनिट सीरीज़ है तो उस इन्फिनिट सीरीज़ को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। इससे कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ दी बाइनॉमियल सीरीज़, और यहाँ n और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इस सम को फाइंड करने के लिए हम n और x की जगह वैल्यूज पुट करके उस इन्फिनिट सीरीज़ का सम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख लें y इसके बराबर है, लेकिन बाइनॉमियल सीरीज़ के राइट साइड में पहला टर्म 1 है, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, तो मैंने दोनों तरफ में 1 ऐड किया है। तो अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है और बाइनॉमियल सीरीज़ में जो राइट हैंड साइड है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इनको कंपेयर करो, जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे इस चीज़ का सम मिलेगा, इस सारे का मुझे सम मिलेगा, यह इन्फिनिट है। तो यहाँ से कंपेयर करें 1 1 से, ये दूसरा टर्म nx इसके बराबर ले ले, ये जो आपका तीसरा टर्म है ये इसके बराबर होगा, तो ये nx 3/4 दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, और ये इसको इसके साथ कंपेयर कर ले तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को आप स्क्वायर कर लें और फिर ये इक्वेशन 3 आपके पास ऐसे हो जाएगा। फिर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 आप डिवाइड कर लें तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी और आपको x की वैल्यू मिलेगी। n और x की वैल्यू आप क्या करें, देखिए इसका ये देखिए इन दोनों को हमने कंपेयर किया था ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। n और x की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको इसका सम मिलेगा। देखिए इसका सम ये है, और आपको इक्वेशन नंबर 1 से पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा आपके पास किसके बराबर है, इक्वेशन 1 में y+1 के बराबर है। तो यहाँ मैंने क्या सपोज रिप्लेस किया y+1, तो अब देख लें यहाँ पे 1/2 - 3/2 ये यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करके आपको अपना रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि बाइनॉमियल सीरीज़ हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, और सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए, इन्फिनिट सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए हम बाइनॉमियल सीरीज़ का राइट हैंड साइड उस गिवन इन्फिनिट सीरीज़ के साथ कंपेयर करके n और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर बाइनॉमियल सीरीज़ का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो उस सीरीज़ का सम भी यहाँ x और n की वैल्यू रिप्लेस करने से आपको मिलेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बाइनॉमियल सीरीज़। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया। आपकी एक्सरसाइज 7.3 में
जो एक्सेलरेटेड कोर्स के क्वेश्चन हैं वो ये हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हैं। ये सारे सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए उनके थ्रू ये एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इनको काइंडली आप सबमिट कर लें 24 पे और थ्रू दिस email sartajaliSTD@uop.edu.pk इस पे इसको काइंडली सबमिट कर लें। थैंक यू।